Good morning, students. Today we are going to study chapter number 5 of Golden Rays. The chapter number 5 is A Hero. Chapter name is A Hero. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गोल्डन रेज नामक बुक का जो 5वां अध्याय है जिसका नाम है ए हीरो, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन इसकी मॉडल रीडिंग लगाएंगे। देन लेट्स स्टार्ट। वी आर गोइंग टू मॉडल रीडिंग। फॉर स्वामी, इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर he was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this. News is to hand off the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. The paragraph described the fight of the boy had with the tiger and his flight up a tree where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. सेकेंड इसका जो पैराग्राफ है वो ये है। After reading it through, father looked at Swami fixedly and asked, What do you say to that? Swami said, I think he must have been a very strong and grown-up person, not at all a boy. How could a boy fight a tiger? You think you are wiser than the newspaper? Father sneered. A man may have the strength of an elephant and yet be a coward, whereas another may have the strength of a consumptive, but if he has courage, he can do anything. Courage is everything. Strength and age are not important. Swami disputed the theory. How can it be, father? Suppose I have all the courage. What can I do if a tiger should attack me? Leave alone strength. Can you prove you have courage? Let me see if you can sleep along tonight in my office room. A frightful proposition, Swami thought. He had always slept beside of his granny in the passage, that any change in this arrangement kept him trembling and awake all night. He hoped at first that his father was only joking. He mumbled weakly yes and tried to change the subject. He said very loudly and with a great deal of enthusiasm, We are going to admit even elders in our cricket club hereafter. We are buying brand new bats and balls. Our captain has asked me to tell you. We will see about it later, father cut in. You must sleep along hereafter. Swami realized that the matter had gone beyond his control. From a challenge, it had become a plain command. He knew his father's intensity at such moments. तो विद्यार्थियों, अपन ने इस चैप्टर की जो मॉडल रीडिंग है वह जरूर लगा ली है। यहाँ पर मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसी चैप्टर के पेज पर ही लिखे हुए हैं। आप इनका भी उपयोग कर सकते हैं और साथ में इसका ट्रांसलेशन अभी मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, तो आप उसको भी ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। परीक्षा में इसमें से एक प्रश्न 3 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए अपन इसको ध्यान से मन लगा करके देखेंगे। फॉर स्वामी, इवेंट टुक्स एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। यानी स्वामी नाम का एक जो बालक है उसके लिए यहाँ पर जितनी भी इवेंट्स हैं यानी घटनाएं हैं वो आशा के विपरीत मोड़ ले लेती है, ऐसा इस पहली पंक्ति में बताया गया है। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प एंड सेड। उसके पिताजी हॉल में बैठे हुए
जिनके ऊपर एक प्रकाश का बल्ब या लैंप लगाया हुआ था, जिसके नीचे वह बैठ करके अखबार पढ़ रहे थे। और उन्होंने उस अखबार के ऊपर से देखते हुए स्वामी से कहा, लिसन टू दिस। स्वामी, इसको सुनो। न्यूज इज टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लेट। तो यहां पर एक समाचार जो उसके पिताजी ने पढ़ा, वह समाचार उसको बताने के लिए उन्होंने अखबार के ऊपर से देखते हुए उनसे कहा कि यहाँ पर एक निकट के ही पास के ही गांव के एक बालक की, एलएडी लेड यानी बालक, लड़का, एक लड़के की बहादुरी की कहानी छापी गई है। हु while रिटर्निंग होम बाय द जंगल पथ केम फेस टू फेस विद ए टाइगर। जो कि जंगल से जब अपने घर की ओर लौट रहा था तो उसका जंगल के रास्ते पर एक बाघ से आमना सामना हो गया। द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर and his flight up a tree where he stayed for a half a day till some people came that way and killed the tiger। ये अखबार का जो पैराग्राफ है वह इस बात का वर्णन करता है कि किस प्रकार से उस बालक ने उस बाघ के साथ फाइट की, संघर्ष किया, लड़ाई की, और वह किस प्रकार से तेजी से एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वह आधे दिन तक उस पेड़ पर तब तक रहा जब तक कुछ गांव वाले वहां पर आ नहीं गए उस रास्ते पर और उन्होंने उस बाघ को मार नहीं दिया। तो दूसरा जो इसका पैराग्राफ है उसकी अब अपन ट्रांसलेशन करते हैं। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, इसको संपूर्ण पढ़ने के पश्चात, फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्स्डली एंड आस्क्ड। स्वामी के जो फादर थे उन्होंने उस स्वामी की ओर गौर से देखा और कहा, व्हाट डू यू से टू दैट। उसके बारे में तुम क्या कहते हो स्वामी। स्वामी सेड, स्वामी ने कहा, आई थिंक ही मस्ट बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल ए बॉय। स्वामी ने अपने पिताजी की बात के लिए आर्ग्यूमेंट किया, तर्क दिया और बोला, मैं ऐसा सोचता हूं कि वह अवश्य ही एक बहुत मजबूत या बढ़ती हुई उम्र का व्यक्ति होगा, कम से कम एक बालक तो नहीं होगा। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर। और स्वामी ने क्वेश्चन किया कि एक बालक किस प्रकार से बाघ से लड़ाई कर सकता है। नाउ स्वामीज फादर अगेन टर्न एंड टेल, यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज पेपर। फादर स्नियर्ड, फादर ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखते हुए उसकी ओर कहा, क्या तुम सोचते हो कि तुम समाचार पत्र की अपेक्षा ज्यादा समझदार हो, बुद्धिमान हो। ए मैन में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, कि एक व्यक्ति में हाथी के जितनी ताकत हो सकती है। एंड येट बी ए कावर्ड, और वह एक डरपोक भी हो सकता है। वेयर इज अनदर में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ कंजप्टिव, जबकि कोई अन्य व्यक्ति टीबी से पीड़ित अपनी क्षमता रख सकता है। बट इफ ही हैज करेज ही कैन डू एनीथिंग, लेकिन यदि उसके पास साहस है तो वह कुछ भी कर सकता है। करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट। करेज है, साहस है, वही सब कुछ है। इसके मामले में जो आयु है, एज है, आर नॉट इम्पोर्टेंट, वह कोई महत्व नहीं रखती है। देन स्वामी अगेन आर्ग्यूड हिज फादर्स, स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी। स्वामी ने पिताजी के द्वारा जो बात बताई गई थी उसका खंडन किया। हाउ कैन इट बी फादर्स, ऐसा किस प्रकार हो सकता है पिताजी। सपोज आई हैव ऑल द करेज, मानो कि मेरे पास संपूर्ण साहस है, मेरे पास संपूर्ण साहस है। व्हाट कैन आई डू इफ ए टाइगर शुड अटैक मी, और यदि मुझ पर कोई बाघ हमला कर दे तो मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा स्वामी ने तर्क दिया। तो स्वामी के पिताजी ने फिर बात को घुमाते हुए कहा, लीव ऑल अलोन
स्ट्रेंथ कैन यू प्रूव यू हैव करेज। स्वामी के पिताजी ने उससे कहा कि तुम सारी ताकत को एक तरफ रख दो, लेकिन क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर साहस है। लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोंग टुनाइट इन माई ऑफिस रूम। तो आओ मैं ये देखता हूँ, क्या तुम आज रात्रि मेरे कार्यालय कक्ष में अकेले सो सकते हो क्या। ए फ्राइटफुल प्रपोजिशन, एक डरावना प्रस्ताव। स्वामी थॉट, स्वामी ने ऐसा सोचा। He had always slept beside his granny in the passage, and any changes in the arrangement kept him trembling and awake all night. स्वामी हमेशा अपनी दादी जी के बगल में, जो कि गलियारा बना हुआ था, वहां पर सोया करता था, और यदि इसके व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन कर दिया जाए तो वह कांपने लगता था। सारी रात भर वह जागता रहता था। He hoped at first that his father was only joking. उसने ऐसी आशा की पहले तो कि शायद उसके पिताजी उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं। He mumbled weakly. वह हल्के से बुदबुदाया और बोला, यस, हाँ पिताजी, मैं सो सकता हूँ। And tried to change the subject. और उसने उस विषय वस्तु को, उस बात की विषय को बदलने का प्रयास किया। He said very loudly with a great deal of enthusiasm. और स्वामी ने बहुत ही तेज आवाज में, एक बहुत अधिक जोश के साथ अपने पिताजी से कहा कि वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब हेयर आफ्टर, कि आज से हम आयु में बड़े व्यक्तियों को हमारे उस क्रिकेट क्लब में प्रवेश देने जा रहे हैं। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स, और हम बिल्कुल नए बल्ले और गेंदें खरीदने जा रहे हैं। आवर कैप्टन हैज आस्क्ड मी टू टेल यू, हमारे कप्तान ने मुझसे ये कहा था कि मैं आपको बता दूं। तो स्वामी के पिताजी ने बीच में बात काटते हुए कहा, वी विल सी अबाउट इट लेटर। फादर कट इन, कि हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे। पिताजी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, यू मस्ट स्लीप एलोन हेयर आफ्टर, कि तुम्हें आज से ही अवश्य ही अकेले सोना है। स्वामी रियलाइज दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। स्वामी को इस बात का एहसास हुआ कि वह जो मामला था अब वह उसकी पहुंच से दूर हो गया। फ्रॉम ए चैलेंज इट हैड बिकम ए प्लेन कमांड, कि उसके पिताजी के द्वारा जो चैलेंज किया गया था, जो उसे चेतावनी दी गई थी, उसे जो ललकारा गया था, वह अब एक साधारण आदेश में परिवर्तित हो गया था। जो चुनौती थी अब वह एक आदेश में परिवर्तित हो गई। He knew his father's tenacity at such moments, और वह अपने पिताजी के बारे में वेल नोन था कि इस प्रकार के मामलों में उसके पिताजी की जो दृढ़ निश्चयता थी उसके बारे में वह अच्छी तरह से जानता था। तो विद्यार्थियों, अपन ने इस चैप्टर का जो फर्स्ट भाग है वह इस चैप्टर के प्रथम भाग का अपन ने अध्ययन कर लिया है। अब इसका ट्रांसलेशन कर दिया है। इसके कठिन वर्ड का जो हिंदी अर्थ है वह उस शब्द के नीचे भी लिखा हुआ है। आप इसको देखें, इसको पढ़ें। जब तक के लिए जय भारत, धन्यवाद, जय हिंद।